mental illness, stress, anxiety, depression. Few terms that we hear about every day these days, and some of us have even experienced it. PSI Global Community has invited a well known psychiatrist to give a doctor's perspective on mental illness and mental wellness. Our today's guest, Dr. Rahul, is an MBBS and MD resident at Safdarjung Hospital. He's a stand up comedian and holds a vision to make India the most educated nation when it comes to mental health. He also believes that a healthy mind can create a healthy body and a healthy lifestyle. So, without further ado, let's go and see what is it that Dr. Rahul is going to share with us. Hello everyone, welcome to Talkative. Let's meet our guest of the day, Dr. Rahul. Hello everyone. It's a pleasure to have you here with us. Thank you for inviting me, Shruti. So, Dr. Rahul is a psychiatrist and he's going to help us with some issues that we face in our daily lives. So, I'll directly start with the first question. The first question is, what is the most common case that you face usually with the patients? And is there any age group to those patients as well? Yes, in the Department of Psychiatry, the most common cases we have is of anxiety, generalized anxiety, anxiety non-specific, and it is more common in females. And most common age group of this generalized anxiety disorder is of females of 35 to 45 years of age. This is also seen quite commonly in females of adolescent age group, 21 to 24, but the 35 to 45 group is more predominant. Okay, so like, do males also go through this problem? Yes, males, quite a lot of males have anxiety issues, but as I said, it is more common in females. But yes, males do have anxiety and their presentation of anxiety is exactly same as female also. थोड़ा सा कम होता है, but है. There are health conditions, certain health conditions that can be mimic anxiety. For example, heart conditions, high blood pressure, poorly controlled diabetes mellitus, extremely obesity. Thyroid conditions are very common. Any thyroid condition, if thyroid is increased or decreased, दोनों में anxiety हो सकती है. And anxiety can be mixed, can be confused with a heart attack also. Most of the cases जो हमें आते हैं कि हमें heart attack आया है, वो in the end anxiety निकलते हैं. So these are the most common causes. ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, but ये सारे के सारे causes routine workup में सामने आ जाते हैं हमारे. So, like, there's a follow-up question. Like, is there a possibility to control anxiety with the help of the medications? Yes, of course. There are a very big group of drugs, we call it anti-anxiety medications, जो हम देते हैं patient को, and anxiety do get controlled by this. And it depends on the severity. जितनी ज़्यादा severe है, उतनी ज़्यादा दवाई देंगे, anxiety धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी. And then there comes a point when we stop the medication and we guide the patient to control his anxiety by doing his own behavior modification, lifestyle modification. जिस प्रॉब्लम है, जो टेंशन है, जो स्ट्रेसर है, उसको एक्चुअल में फेस करना, उससे एंजाइटी ठीक हो जाती है लोगों की. स्लीप डिस्टर्बेंसेस है अगर आपको, और आप अच्छे से, स्लीप साइकिल इज नॉट गुड, देन मेंटेनिंग योर स्लीप साइकिल नाइसली. पुअर ड्रिंकिंग हैबिट्स, रिमूविंग द ड्रग्स जो भी है, अल्कोहल को छुड़वाना. और अगर आपका कोई भी रीजन से एंजाइटी है ना, तो उस रीजन को रिमूव करने के 3 से 4 हफ्ते के बीच में एंजाइटी ठीक हो जाती है. अगर कोई अल्कोहल पीता है, बहुत ज्यादा कॉफी चाय पी रहा है, तो उसको कम करो, 3 से 4 हफ्ते के अंदर अपने आप एंजाइटी ठीक हो जाएगी. दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी जस्ट टैकल द रीजन. क्या है इसका, उस रीजन को हम रिमूव करते हैं, एंजाइटी इज ऑलवेज फाइन. एंटी एंजाइटी तभी देते हैं जब रीजन ना हो कोई, या इंटरनल रीजन है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस आपको बताया था, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो होंगे ही, एज रिलेटेड है. तो वहां पे हम थोड़ी देर के लिए, जब तक उन्हें आएंगे वो चेंजेस, तब तक एंजाइटी देते हैं. एक पॉइंट पर help of gynecologist, without the help of gynecologist, then we also stop the anti-anxiety medications. Okay, so what is the percentage of the patients who are medicated? Exact percentage batana is tough, but if somebody is coming to a hospital for getting treated, that is a very big sign that of course he is having severe problem. कोई भी normal आदमी से थोड़ी सी दिक्कत है वो नहीं आता है. So we always give patient medication. Yes, we do not start medication of anxiety regular basis पे. हम तभी कहते हैं कि हाँ, जब जरूरत पड़े तब ले लो. But most of the time we only go for lifestyle changes only. For example, किसी को anxiety होती है तो हम बोलते हैं कि जब anxiety हो तब ये दवाई ले लेना. अगर तुम्हें लगे कि बिना दवाई के तुम ठीक कर पा रहे हो तो दवाई मत लेना. तो most of the time patient बस वो थोड़ी सी help से ही अपने आप को संभाल लेते हैं.
अगर बहुत ज्यादा है तो हम रेगुलर स्टार्ट करते हैं मेडिकेशंस. परसेंटेज बताना इज टफ, कैलकुलेट नहीं किया होगा किसी ने. My next question is, usually people have a mindset if they are taking medications for their mental problems, वो addicting हो जाती है. So how true is that? This is a very common question every patient asks me कि इसकी लत तो नहीं लग जाएगी, इसका नशा तो नहीं लग जाएगा. ऐसा कभी भी नहीं होता है. Not even any medication has addiction liability if taken under prescription of a psychiatrist and if all the guidelines we have taught them should be followed strictly. अपनी मर्जी से डोज आगे पीछे करेंगे, अपनी मर्जी से दवाई लेंगे, जिस वक्त पे बताइए उसके अलावा दवाई लेंगे, तो कोई भी दवाई का नशा लग जाता है. पीपल आर एडिक्टेड टू पेन किलर्स ऑल द टाइम, जबकि उनका कोई नशा भी नहीं होता है. So you should always follow your doctor's instructions very carefully. हम इस तरह से दवाई शुरू करवाते हैं और इस तरह से बंद करवाते हैं कि इसका कभी लत किसी को नहीं लगती है. लत उन्हीं को लगती है जो अपने खुद से लेते हैं दवाई बिना अच्छे से पढ़े हुए. So there is no addiction liability if taken under the guidance of a professional psychiatrist. There is no addiction liability. Okay, and is there any particular time frame? जैसे कि हमें fever हुआ है, तो we usually take medicines for 3 to 5 days, right? So is there any particular time frame for which you have to take the medications? This depends on the condition. हर condition का अपना अपना time frame होता है. But अगर severe enough है, किसी को इतनी problem है कि उसकी लाइफ में, उसके प्रोफेशन में, उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं इस कंडीशन के कारण, देन वी एटलीस्ट वी ट्राई टू की कम से कम भी 3 से 6 महीने के लिए मेडिकेशन को कंटिन्यू रखा जाए. चाहे आपको आराम पहले 2-4 हफ्ते में भी आ जाता है, चाहे आपको आराम पहले महीने में भी आ जाता है, बट वी कीप आवर मेडिकेशंस कंटिन्यू सो दैट द बेसलाइन शुड बी मेंटेन्ड एंड देन वी टेपर मेडिकेशन वेरी स्लोली. हमें दवाई बंद करने के लिए ही 1 महीना चाहिए. हम बहुत धीरे धीरे दवाई की डोज कम करके बंद करते हैं. तो 1 महीना तो हमें स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और 1 महीना बंद करने के लिए 2 से 3 महीने हमें दवाई को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है. सो दिस इज द टाइम फ्रेम, लाइक फ्रॉम 4 to 6 months वी लाइक टू कंटिन्यू द मेडिकेशन इररिस्पेक्टिव कि पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. चाहे वो ठीक हो भी चुका है, फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं. सो दिस इज हाउ इट्स डन. So during the times of COVID, is there any increase in any particular kinds of cases or ऐसा कुछ है जो आपको कोविड में स्पेशली देखने को मिला है? यस ऑफ कोर्स. इलनेस एंजाइटी नाम का एक नई बीमारी आई थी जो पहले हमने कभी नहीं देखी थी. कोविड से डर लगना, एम्बुलेंस की आवाज से डर लगना, बंद कमरों से डर लगना, मास्क से डर लगना. लोगों को बहुत ज्यादा डर था कोविड का. इवन जो लोग कोविड होने के बाद ठीक हो गए थे, उन्हें फिर डर लगता था कि अब कोविड से दोबारा क्या होगा. तो इसे हमने इलनेस एंजाइटी नाम की चीज दी थी कि एक स्पेसिफिक इलनेस से डर लगता है लोगों को. So this is also a type of anxiety, right? Yes, this is anxiety. इससे सेम होता है. एंजाइटी में क्या होता है, these some features in anxiety. फॉर एग्जाम्पल, आपके दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, आपके हाथ पैर कांपते हैं, आपकी जुबान लड़खड़ाती है, आपके गला सूख जाता है, सांस लंबी लंबी लेते हैं आप, शायद पसीना भी ज्यादा है, और बहुत हद तक अगर बहुत ज्यादा सेवियर चलेगी तो लोग बेहोश भी हो सकते हैं. तो यही फीचर आते हैं उन लोगों में, और उनके सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं. पैनिक अटैक इज अ वेरी सिवियर फॉर्म ऑफ एंजाइटी. पैनिक अटैक कैन लास्ट फॉर होल डे. एंजाइटी जो होती है, जिसे हम घबराहट बोलते हैं, वो 5 से 10 मिनट की होती है. तो दोनों का इलाज भी अलग से होता है. तो इलनेस एंजाइटी इस होती है लोगों को कि मुझे कोविड ना हो जाए, मुझे कोविड ना हो जाए. दिस वाज अ वेरी कॉमन सिनेरियो वी हैव सीन इन कोविड टाइम्स. ओके. अदरवाइज लोगों को आप देखेंगे कि कैंसर से बहुत डर लगता है. कोई भी सर दर्द हो, लोग से आते हैं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है मुझे. अगर किसी फीमेल को थोड़ी सी ब्रेस्ट में पेन है तो वो सोचती है मुझे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है. वो ब्रेस्ट को एग्जामिन करना शुरू कर देगी, देखेगी कोई मुझे लंप मिल जाए, कुछ ऐसा. बट कोविड की एंजाइटी इन सारी बीमारियों की एंजाइटी से बहुत ऊपर थी, बहुत सारे पेशेंट से, और वो बहुत सारा डरे हुए थे. Okay, so as this is also a type of anxiety, is there any other kinds of anxiety that you see often? Yes, there are many kind of anxiety. Anxiety disorder एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें बहुत कुछ आता है. एंजाइटी में एक तो मैंने बताया आपको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, एंजाइटी नॉन स्पेसिफिक होता है, इलनेस एंजाइटी होता है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है. हाइपोकॉन्ड्रियासिस मतलब कि आपको कोई सिम्टम आता है थोड़ा सा, जैसे सर में दर्द हुई, आप सोचने लगे नहीं अब तो ये ब्रेन कैंसर है, ये घबराहट होती है. दूसरा होता है डिप्रेशन विद एंजाइटी, कि आपको या फिर एंजाइटी विद डिप्रेशन, कि आपको डिप्रेशन है बहुत और आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि ये डिप्रेशन मुझे कुछ करने नहीं दे रहा जीवन में, और वो सोच सोच के आपको और एंजाइटी होती है और घबराहट होती है. दूसरी स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंजाइटी, घर में लड़ाई है, पैसे की दिक्कत है, या कोई और दिक्कत है आपके जीवन में, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंजाइटी. एक होती है मेडिकल रीजन इंड्यूस्ड एंजाइटी, कि आपको कोई और बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है. फॉर एग्जांपल, किसी की टांगों में दर्द है, उसे हम पेन इंड्यूस्ड एंजाइटी बोलते हैं. किसी की
आंखों में बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम आ रही है, नजर नहीं ठीक हो रही है, या आपको कोई ऐसी कोई और डिजीज है, फॉर एग्जांपल आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम है, गैस की दिक्कत है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस इंड्यूस्ड एंजाइटी। तो ऐसे एंजाइटी के बहुत सारे स्पेक्ट्रम है, जैसे जैसे रीजन आता है वैसे वैसे एंजाइटी का स्पेक्ट्रम चलता जाता है, बट अप्रोच टू ऑल ऑफ द एंजाइटी इज ऑलमोस्ट सेम। दवाई सेम है, समझाने के तरीके भी सेम है, और इनका आगे जाके दवाई को जो रिस्पॉन्स होता है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। So my next question is, we usually hear कि सबको एंजाइटी है, जिसको पता है उसे भी एंजाइटी है, जिसको नहीं पता है उसे भी एंजाइटी है। आज की सिचुएशन में सबको एंजाइटी है। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एंजाइटी, या फिर सिर्फ हमें लगता है कि हमें एंजाइटी है और है नहीं? एंजाइटी को अब अगर हम हिंदी में बोले तो घबराहट बोलते हैं, और इसके कुछ फीचर्स होते हैं। तीन तरह के फीचर हम इसे तीन तरह के फीचर्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहला फीचर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कि शरीर में बदलाव आना, आपकी धड़कनें बढ़ना, गला सूखना, जुबान लड़खड़ाना, शायद आपका बीपी भी कम या ज्यादा हो सकता है। कुछ लोगों को बाथरूम ज्यादा आता है, कुछ लोगों को गर्मी ज्यादा आती है, पसीना ज्यादा आता है। दूसरा होता है चलने फिरने में दिक्कत आना, आप ज्यादा ज्यादा चलना फिरना कर देते हैं शुरू, या एकदम चुप करके नीचे बैठ जाते हैं, आपके शरीर में जकड़न आ जाती है, हाथ पैर कांपते हैं, आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते, आप लिख नहीं सकते, सब्जियां नहीं काट सकते। और तीसरा है डर लगता है। एंजाइटी जब होती है, घबराहट होती है। 90% ऑफ द टाइम आप लोगों से पूछो किस बात की घबराहट हो रही है, उन्हें नहीं पता। उन्हें लगता है कुछ बुरा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, बस। बट कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बस घबराहट है किसी चीज की। तो इसे हम एंजाइटी बोलते हैं, इसे हम घबराहट बोलते हैं, और कुछ लोग इसे बेचैनी भी बोलते हैं। सो दिस इज एंजाइटी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर यही चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, कि घबराहट में या एंजाइटी में ये सारे के सारे सिम्टम 10 से 15 मिनट तक होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। और यही सिम्टम अगर 1 घंटे से ज्यादा करें, परसिस्ट करें, और आपको शायद बेहोशी हो जाए, या ये सिम्टम बहुत ज्यादा है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ही बेड पे लेट गए हैं, तो हम इसे पैनिक अटैक भी बोल सकते हैं। एंजाइटी और पैनिक अटैक जब भी आते हैं तो इनका कोई कारण नहीं होता ज्यादातर। पैनिक अटैक का तो कभी कोई कारण नहीं होता है, बट एंजाइटी के कारण हो सकते हैं। जैसे लोगों को बसों में एंजाइटी ज्यादा होती है, बाजार में एंजाइटी ज्यादा होती है, शोर शराबे सोशल में, भीड़ एंजाइटी। वाली जगह पे, स्टेज पे एंजाइटी ज्यादा है, सोशल एंजाइटी उसे हम कहेंगे। कुछ लोगों को एंजाइटी अकेलेपन में ज्यादा होती है, अंधेरे में ज्यादा है, बंद कमरों में, वॉशरूम्स में, लिफ्ट्स में, तो वो भी एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी के ज्यादातर कारण होते हैं। तो यही कारण हमने पता करने हैं कि आपको कहाँ कहाँ एंजाइटी होती है, उस हिसाब से हम उन्हें बताते हैं कि किस तरह से आप इन अपनी एंजाइटी को कोप अप कर सकते हैं। In what situations should an individual come to a doctor कि I am having this problem, please look into it, या फिर वो खुद से उस चीज को कोप अप कर सकते हैं? तो कैसे पता चलेगा डिफरेंस? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन श्रुति। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी बीमारी हो आपको, अगर कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम आ रही है आपको, अगर आपके काम में या पर्सनल लाइफ में वो इंटरफेयर कर रही है, तो आपको जल्दी से जल्दी एक साइकेट्रिस्ट के पास आना चाहिए। लोग सारे पूछते हैं हमेशा कि कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो, चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, मेनिया हो, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है कि क्या वो आपको दिक्कत है, क्या आपके जीवन में वो दिक्कत कर रही है। अगर आपको एंजाइटी हो रही है पर आप काम आराम से कर पा रहे हैं, आप सबसे बात कर पा रहे हैं, तो फिर एंजाइटी क्यों हो रही है? फिर तो वो ठीक है, फिर आप खुद ही ठीक कर सकते हैं उसे। बट अब आप ऐसा कर रहे हैं कि मैं आराम से लैपटॉप पे काम कर रही थी, एंजाइटी हुई तो मुझे लैपटॉप से काम करके उठ के जाना पड़ा, या एग्जाम नहीं दे पा रही हूँ, एग्जाम में लिख नहीं पाती हूँ 5-10 मिनट के लिए जब एंजाइटी होती है, तब आपको जल्द से जल्द एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तब आपको हेल्प की जरूरत एक्चुअल में है। कभी कभार लोग खुद नहीं मानते उन्हें हेल्प की जरूरत है, बट अगर उनके दोस्त हैं, उनकी फैमिली है, उन्हें पता चल रहा है कि ये बहुत देर से कुछ करने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, बट इससे हो नहीं पा रहा क्योंकि एंजाइटी इश्यूज है, तो प्लीज गाइड योर फ्रेंड टू गेट ट्रीटेड। बिकॉज यही एंजाइटी अगर आपको काम करने से रोकेगी और आपके काम नहीं होंगे, तो ये डिप्रेशन में बदल जाएगी। तो ये So एक anxiety can साइकेट्रिक change into depression, right? एंजाइटी कैन चेंज इनटू डिप्रेशन, एंड एंजाइटी कैन कोएग्जिस्ट विद डिप्रेशन, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए, कि उससे डिप्रेशन भी है, ऊपर से एंजाइटी भी है। अब ये बताना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि पहले डिप्रेशन आया या पहले एंजाइटी आई। बट अब दोनों आ गए हैं, तो हमें दोनों के लिए मेडिकेशन देनी पड़ेगी। पहले अब हमारे पास अगर आप आते तो हम थोड़ी देर के लिए एंजाइटी की मेडिकेशन देते और वो ठीक हो जाती, बट अब दोनों की मेडिकेशन 6-6 महीने के लिए चलेगी, तो पेशेंट के लिए टफ हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वी से कि जल्दी से जल्दी आपको एक साइकियाट्रिस्ट के पास आना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, उसे वहीं पे खत्म कर देना चाहिए। So anxiety and depression, which is usually a very common problem in everybody these days, so can these be cured completely? Like 100% cure है इन चीजों का?
यस ऑफ कोर्स, इनका 100% क्योर है और हम डेली बेसिस पे इसका 100% क्योर करते हैं। बट इसमें डॉक्टर और पेशेंट दोनों का रोल होता है इक्वली। एंजाइटी में भी अगर पेशेंट सही टाइम पे दवाई खा रहा है, सही टाइम पे हमारे पास आ रहा है, झूठ नहीं बोल रहा कोई भी, किसी भी तरह की एडिक्शन नहीं है उसे, तो एक नॉर्मल रेगुलर मेडिकेशन के साथ एंजाइटी ठीक हो जाती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ भी। एंड यही बात डिप्रेशन की भी है। डिप्रेशन से लोग बहुत अच्छे से ठीक होते हैं अगर वो सच बोल रहे हैं और हमारी बात मान रहे हैं और जैसे हमने बोला मेडिकेशन उसी टाइम से खा रहे हैं। तो डिप्रेशन और मेडिकेशन, एंजाइटी दोनों के दोनों हमेशा के लिए क्योर किए जा सकते हैं। बहुत हाई रेट्स हैं इनके क्योर के, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं मेडिकेशन को ये दोनों की दोनों डिसऑर्डर्स। यूजुअली लोग जो बार बार आते हैं मुझे असर नहीं कर रहा, तो एक तो वो दवाई टाइम पे नहीं खाते हैं या खुद से दवाई के साथ हेरफेर करेंगे, जब नींद नहीं आई तब खा लिया, जब दिल की डोज बढ़ा ली, कम कर ली। और दूसरा एडिक्शंस, अपनी अल्कोहल को नहीं छोड़ेंगे, सिगरेट्स को नहीं छोड़ते हैं, टबैको को नहीं छोड़ते हैं, तो फिर इन दो डिजीजेस का ठीक करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इन 3 सिनेरियोज में। Like I said, stress is very common these days. So if not anxiety or depression, there is some other mental illness or mental issue that everybody is going through, right? So what are the changes to be made in a lifestyle so that we can make sure that we are living a mentally healthy life? The most important thing to make your day more healthy is planning a day. आपका एक शेड्यूल अच्छा सा होना चाहिए। हर एक चीज chaotic या हर एक चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपको पता ही नहीं अब कल क्या होगा या अगले मौके पे क्या होगा। तो एंजाइटी या बाकी डिसऑर्डर बढ़ जाते हैं जब आपको खुद को नहीं पता होता कि अब क्या होगा। आपने अच्छे से शेड्यूल बनाया हो, सुबह उठते हैं आप एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं टाइम पे, अब इतने से इतने पढ़ेंगे या जॉब करेंगे, उसके बाद आपका ये प्लान होगा। ठीक है, वीकेंड्स पे आप एक आधा दिन हफ्ते में या 2 दिन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप अनप्लान्ड काम कर रहे हैं, बट हर रोज नहीं। 90% ऑफ द पीपल हु हैव पुअर लाइफस्टाइल, जिनका कोई प्लान नहीं होता है, जिनकी फूड हैबिट्स प्लान्ड नहीं है, जिनके बेड हैबिट्स प्लान नहीं है, स्लीप हैबिट्स प्लान नहीं है, उनको ज्यादातर होता है साइकेट्रिक इलनेस होने के ज्यादा चांस होते हैं। एंड सेकेंडली, नॉट शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स। जो लोग जितना ज्यादा शेयर करते हैं वो उतने ज्यादा हेल्दी रहते हैं Speaking out. साइकोलॉजिकली। स्पीकिंग आउट वट एवर द प्रॉब्लम इज। जरूरत नहीं है देखने की कि मैं सिर्फ अपने दोस्तों से बात करूं या मेरा अच्छा दोस्त है। कोशिश कीजिएगा किसी से भी बात करने की जो समझदार हो, समझ सकता है। Be कोई it भी, a और अगर doctor, आपसे कोई be it बात a करना friend. चाहता है, बी इट अ फ्रेंड, बी इट योर कलीग, जिससे आप ज्यादा अच्छे से बात नहीं किया बट क्या पता वो बहुत समझदार हो, आपकी बात को अच्छे से समझ ले। पेरेंट्स हैं, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, कोई भी हो सकता है। यू शुड शेयर योर प्रॉब्लम्स एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज जितना आप शेयर करते हैं वो प्रॉब्लम का इम्पैक्ट उतना कम हो जाता है। एंड सेकेंडली, आपको अगर समझदार लोगों से शेयर करें तो वो गाइड भी अच्छे से करेंगे। तो इट्स ऑलवेज विन विन एंड प्लस प्लस। So there's one last thing that I want to ask. Now that you're a well-known psychiatrist, what is that one message that you would want to give to people here today? I would say that everybody should focus maximum energy on themselves and their own careers and building their own personality instead of running on other people. Until and unless आप खुद एक सक्सेसफुल, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है, आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। जब भी आपको लगे आपके लाइफ का गोल क्या है, बिकॉज इफ यू आर independent, you are strong, you are successful, then only you can have other things in your life like a relationship or enjoyment. At the cost of your career, at the cost of your own self growth, you cannot have fun. Those are the things people regret and they give them mental issue कि थोड़ी देर के लिए तो बहुत मजा आया बट बाद में कुछ खाली खाली लगता है, कुछ कमी लगती है, because there was a time when you were supposed to help yourself and you were supposed to grow and you were supposed to take care of your parents. वो टाइम आपने खराब कर दिया just having फन में या किसी लोगों की हेल्प करने में या लोगों की बातों में। इफ यू वांट टू हेल्प समबडी, हेल्प देम प्रोफेशनली, बी समवन, बिकम समवन स्ट्रांग जो अच्छे से किसी को हेल्प कर सकता है। सो आई वुड ओनली से कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स कम्स आफ्टर दैट। That was a great message, and it was really a pleasure to have you here with us. Thank you so much for sharing all the insights with us. It was pleasure was all mine, all actually. It was nice talking to you too. Thank you. Bye-bye.